watched this on TV or on YouTube and I said, I wish I could be there. And then now, how confident do you feel you'll stay awake all night? Not at all, not confident at all. Bhava Jananam. Welcome to Mahashivratri. शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरणा। तलवार के दम पे करोगे ना तो ऐसी चीजें धर्म वो है जिसमें प्यार हो, सब कुछ हो, हर चीज हो, मजा तब आता है। ये चीज देखने को मिल रही है इंडिया में। To be here, we hope that this Mahashivratri will be going forever and there'll be more and more people joining us. After Sadhguru's opening invocation, the night then descended into almost non-stop music and celebration. ये है भारत की एकता जो आज भारत को चीज तोड़ ना सकी। बिल्कुल। और तुम्हारी बकचोदियों ने पूरे पाकिस्तान को तोड़ दिया। 4 स्टेट है, चारों एक दूसरे को गालियां दे रहे लॉर्ड शिव और माता पार्वती के मिलन की रात माना जाता है और इसी रात कहा जाता है कि वो दोनों ही धरती पर आते हैं और लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। 12 hours of quality entertainment to keep us energized in the early hours. It was, however, time to leave. So that's it, Mahashivratri 2023 done. Drive, and right now we're in Coimbatore. Why are we in Coimbatore? It's because it's Shiva's birthday. Lord Shiva, the god. Mahashivratri is what it's called, or Shivaratri. It happens once a year, every year. Astrologically, the planets and the universe and the solar system are going through a certain change. And during this change, Shivaratri, there's a huge change in energy, so we are told, within the universe. And if you stay awake all night, that's tonight, all night till 6 o'clock in the morning, good things happen to you on a mental, physical and spiritual level. So we are told by Mr. Sadhguru himself, who is hosting tonight, and we are going to it, the all-nighter, the largest spiritual event in the world. Back of Shiva's head now, and it is massive. It is so cool with the mountains behind it. I can't wait to get to the front and see his face. Totally blown away already by the Adiyogi statue, we made our way to the seated area. With the stage far in the distance and us less than halfway back, we started to realise the sheer scale of the event. Every single year we've watched this on TV or on YouTube and I said, I wish I could be there. And then now, how confident do you feel you'll stay awake all night? Not at all, not confident at all. I fall asleep at 10 o'clock normally, so this is going to be difficult. We watched the sun go down behind the mountains, lighting everybody's faces with an amber glow. Then the live stream came on the screens showing Sadhguru and the President of India arriving. The energy in the crowd was palatable, whilst watching Sadhguru and the President getting closer to arrival. Even watching on the screens felt magical. We waited in anticipation. Kala na janati tava jananam. Welcome to Mahashivratri. महाशिवरात्रि जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और वो क्यों मनाया जाता है? क्या उसका भी कोई एस्ट्रोनॉमिकल एक है चक्कर? क्योंकि इससे पहले हमने महाकुंभ पे बात की थी और संजय दीक्षित जी को मैंने फिर एक बार इस टॉपिक पे रिक्वेस्ट की कि नहीं आप ही आइए, क्योंकि आप जानते हैं कि इन टॉपिक्स पर जितनी गहराई से ये बात करते हैं बहुत कम लोग बात करते हैं इस पे, वो हर टॉपिक पे ऐसे बात करते हैं। लेकिन संजय जी, इससे पहले कि महाशिवरात्रि की तरफ हम आए, आपको चले ये भी एक खुशी की वो इवेंट होता है तो हम आपको मुबारकबाद भी दे देते हैं। फिर आप लोग मैच जीत गए और बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया आपने। पता नहीं, तो कह रहे हैं कि साहब कोई 22 पंडित बैठे हुए थे, उन्होंने जिता दिया। संजय जी, आपने मुझे लगता है सिलेक्ट करके भेजे थे। लेकिन वो 22 पंडित वाली जो थियरी है, उसमें मजे की बात यह है कि अभी मैं जो है ना, एक स्पोर्ट्स चैनल भी हमारी बन गई है,
तो उस पे ही मैं ये बोल रहा था कि वो 22 पंडित जो थे, वो इसकी थ्योरी ये थी कि साहब कि दुबई में मैचेस इसलिए कराए गए कि पंडित वहाँ जा सकते थे, पाकिस्तान में होता मैच तो वहाँ नहीं जा सकते थे। तो मैं ये पूछ रहा था कि भाई ये जो न्यूजीलैंड वाला जो मैच हारे हैं उसमें कौन से पंडित थे? वो तो कराची में हुआ था। देखिए शिवरात्रि तो हर महीने होती है, जो आपका लूनी सोलर कैलेंडर है भारत का। भारत हैज अ यूनिक कैलेंडर लूनी सोलर, जिसमें लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर दोनों को मिलके बनाया हुआ है कि हर महीने की 13th 14th यानी 13th डे 14th डे की जो बीच की नाइट होती है, दैट इज शिवरात्रि। और ये जो है ये महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि इसका जो 11th मंथ होता है, माघ महीना बोलते हैं जिसको, तो माघ महीने की 13th 14th वाली जो नाइट होती है, दिस इज महाशिवरात्रि। तो ये जो महाशिवरात्रि है, ये इस दिन जो है कहते हैं भाई कि शिव जी का और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये तो लेजेंड है, टॉकिंग अबाउट द लेजेंड। और उस लेजेंड में जाते हैं तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आपके चैनल पे ही बताया हुआ है कि जो लेजेंड्स हैं उनको हम लिटरली अगर देखेंगे तो दे साउंड लाइक स्टोरीज, ठीक है। लेकिन भारत की जो परंपरा है उसमें लेजेंड्स आर ओनली सिंबोलिज्म्स। तो उसका एक डीप सिंबोलिज्म है कि भाई शिव क्या है, पार्वती क्या है। शिव और पार्वती यानी कि इसको वहाँ अलग अलग सिस्टम्स हैं। एक सांख्य का सिस्टम है जिसमें पुरुष और प्रकृति का मिलाप होता है, दैट इज वन। उसके अलावा शिव जो है वो शिव इज द एसेंस एंड पार्वती इज द शक्ति, द एनर्जी। तो आपके सब्सटेंस प्लस एनर्जी जब तो दोनों का यूनियन होता है तभी सृष्टि आगे चलती है। तो ये जो महाशिवरात्रि है, इट इज दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू दी व्हाट इज कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस, तत्व जिसको बोलते हैं। तत्व और शक्ति का ये मिलाप है, इसलिए इसकी इतनी महत्ता है। यदि आपने डांसिंग शिवा, ये जो नटराज वाली जो आपने देखी हो, इफ यू हैव, अगर आप पिक्चर है आपके पास उसको आप लाएं तो मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस, किस तरह से जो है वो डांसिंग एक्सप्लेन कीजिए। तो वो जो डांसिंग शिवा है ना, उसमें आप देखते हैं कि भाई उनके 4 हाथ हैं और वो खड़े हुए हैं और ही इज ऑन हिज राइट लेग के नीचे एक समथिंग लाइक ह्यूमन लाइक फिगर इज देयर, उसको अपस्मार बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड जो है वो दैट इज अक्रॉस द राइट बट रेज्ड। और दाएं हाथ में उनके डमरू है और बाएं हाथ में उनके एक वो है फायर। जो ऊपर जो दाहिना हाथ है उसमें डमरू है और बाएं हाथ में फायर है, और बाकी एक हाथ जो है वो अक्रॉस हिज बॉडी वो दिखता है ऐसे, और एक हाथ जो है वो अभय मुद्रा जिसको बोलते हैं, ये वाली, ये दाहिना हाथ। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जो ये है, ये इट इज शोइंग कि उनका जो डांस है वो डांस इज एक्चुअली सिग्निफाइंग द इटर्नल टाइम साइकिल। क्योंकि जब हम बात करते हैं टाइम साइकिल्स की, तो टाइम साइकिल जो है एब्राहमिक रिलीजन्स में, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म में, तो टाइम साइकिल है वो लीनियर होता है। लीनियर मतलब इट हैज अ बिगिनिंग, इट हैज एन एंड। लेकिन हमारा जो धार्मिक सिस्टम है उसमें जो टाइम साइकिल हैज नाइदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड। तो ये जो डांस है इट इज शोइंग दैट इट हैज नाइदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड। वो जो डमरू है, डमरू से आपका होता है शब्द, जो पंच महाभूत बोलते हैं जिनको। तो आप ये देख रहे हैं, जब ये जो नटराज शिवा है, ये प्रतीक क्या बताते हैं कि ये आकाश का जो शब्द जिसको बोलते हैं, स्पेस में जो आपका जो रेजोनेंस होता है, दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। तो वो जो डमरू बजा रहे हैं उसे शब्द से वो एक उससे क्रिएट कर रहे हैं, और जो दूसरे हाथ में जो आग है उससे वो
उसका विनाश कर रहे हैं। तो इट इज एन एवर गोइंग, एवर मूविंग, इटर्नल टाइम साइकिल। एक तरफ से सृष्टि हो रही है, क्रिएशन हो रहा है, दूसरी तरफ से उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो शिव के भी दो नाम है। शिव, जब व्हेन ही इज क्रिएटिंग, दैट इज शिव। शिव मीन्स ऑस्पिशियस। The other form where he is destroying, that is called Rudra. Rudra is the scary form. और जो अपस्मार है, जो नीचे वो जो दबा हुआ है, that is called ignorance. वो that denotes ignorance. तो जब ignorance को you control the ignorance firmly, वो मरता नहीं है कभी. Ignorance is always there. You have to control the ignorance. Once you control the ignorance, then you understand the cycle.